शुरू करें मित्रों। Friends, the BJP, its leaders, its president appear to have lost it. The BJP and its leaders, including its president, talk about everything except municipal issues at a municipal rally yesterday. They talked about corruption in a mechanical, meaningless manner. The BJP would do well to put its own house in order before they venture into this territory. They should first have sorted out their Bangaru Lakshmans and their Judeos, their Yedurappas, and more importantly, they should have responded about the CAG report on Gujarat a few days ago, and even more importantly about the CAG report in Bihar yesterday, incidentally which talks only of 22,000 crores. Therefore, friends, when the BJP sermonizes on corruption, it is truly sounds vacuous, empty and hypocritical. Yesterday, when everything except municipal issues were talked about, it was clearly an exercise in diversion, digression and derailment. It was also an exercise in obfuscation and confusion. And when they talked of corruption, they did not tell you as to why the two words black money were not even whispered by them even once between 98 and 2004. Why no effort was made to execute even one special bilateral with the tax havens. As you know, the Congress has done 60 to 80 such bilaterals. Friends, it is but obvious that the BJP is a party which is trying to deflect from its own issues of non-governance and misgovernance. It has no achievements and no improvements, no real policies and no new ideas to talk about either at the national level or even at the Delhi municipal level. It will find it difficult to explain why civic amenities are non-existent, why water, electricity and sewerage issues are in trouble, and yet they try to deflect and divert and digress by such obviously cheap tactics. ये दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी, उनके अध्यक्ष, अन्य लीडर एक म्युनिसिपल रैली में सभी मुद्दों के बारे में वार्तालाप और टिप्पणी करते हैं सिवाय म्युनिसिपल मुद्दों के, और जब वो भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो अजीबोगरीब लगता है, एक विचित्र आडंबर दिखता है। भ्रष्टाचार के विषय में बात करने से पहले बीजेपी को अपने खुद के घर के अंदर झांक कर बंगारू लक्ष्मण और जुदेव वाले इश्यूओं को याद करते हुए श्री येदुरप्पा के विषय में सब चिंतन करते हुए उसके बाद बोलना चाहिए। विशेष रूप से उनको तब बोलना चाहिए जब वो जवाबदेही दे चुके हों जो हमने अभी तक नहीं सुनी है उनसे। सीएजी की हाल की कुछ दिनों पहले की विस्तृत व्यापक रिपोर्ट गुजरात के विषय में, और उससे भी ज़्यादा हाल की कल की सीएजी की रिपोर्ट बिहार के विषय में, जहां मैं आपको याद दिला दूं कि सिर्फ 22,000 करोड़ की टिप्पणी की गई है। सिर्फ हमने जो कल देखा वो और कुछ नहीं था सिवाय एक बड़ा
अजीबोगरीब और एक प्रकार से बड़ा सस्ता प्रयत्न मुद्दों को डाइवर्ट करने का, लोगों को बरगलाने और बहलाने का और ऐसे मुद्दों पे टिप्पणी करने का जो कोई संबंध नहीं रखते उस विषय से, जिस विषय के बारे में वहाँ लोग जुड़े हैं। इसका कारण बड़ा सरल है। इसका कारण सिर्फ ये है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई नवीनतम नीतियाँ नहीं हैं, कोई नई विचार और आइडियाज़ नहीं हैं, न राष्ट्रीय स्तर पे न म्यूनिसिपल स्तर पे। और जब वो कल एक म्यूनिसिपल रैली में इस बात के बारे में बात बिल्कुल न कर पाए कि रोड्स क्यों ख़राब हैं या पानी और सीवरेज के मुद्दों पे सुधार क्यों नहीं है 5 वर्षों में, तो निश्चित रूप से ये आवश्यक हो गया कि ऐसे मुद्दों के बारे में बात करें जिनका न उससे कोई संबंध है और जिन मुद्दों पे बीजेपी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अत्यंत दुखद और निंदनीय है। राइट। आर्मी, let's do the army because everybody is asking. Let me do the army thing. Sir, today, report in the Indian Express says the 2 divisions of the Indian Army moved to Delhi without informing the government. The government today has rubbished the report, but they haven't denied the fact that such an event took place. They only said they tried to downplay it by saying this was a routine exercise. Let me answer. Is it not a case of, to use the leader of the opposition's word, the government using the art of statecraft? I'll say it in English and Hindi because everybody asks the same question, so I'm not going to take other questions on it. The government of India has already spoken. There is not an iota of truth in the speculative, purely surmiseful conclusions. The Congress party stands for and has over the 125 years of its existence always stood for and created institutions. It is easy to destroy them, very difficult to create and nurture them. Those who speculate by innuendo or inference on such delicate and sensitive matters should realize, must realize the very serious damage they cause, howsoever unintentionally, to our national fabric. The army is a hallowed institutional pillar of Indian democracy. It is our pride and our neighbors' envy. Many of our neighbors' envy. Let not those who speculate casually or hypothesize on uninformed and completely irrelevant material irreversibly damage this fundamental foundation of our vibrant democracy. The fact, as the question put it, that there was movement does not have to be denied. But do you think that every movement must lead to this kind of conclusion? The government has explained, and we completely repudiate and indeed condemn any such inference. मित्रों, भारत सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है, एक लेश मात्र, एक कांटे का के बराबर भी सच्चाई, आंशिक रूप से भी सत्य इन प्रकार की रिपोर्ट्स में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव अपने 125 वर्ष के इतिहास पे संस्थाओं को बनाने में विश्वास रखती है और जैसा कि हम जानते हैं, उनको बनाना, उनका पनपना एक बहुत कठिन कार्य है, जबकि उनको खत्म कर देना एक आसान प्रक्रिया है तुलनात्मक रूप से। जो लोग अटकल के आधार पर
एक अफवाहों के आधार पर, अपने सब्जेक्टिव निर्णय या कंक्लूजन्स के आधार पर इस प्रकार के परिणाम के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, वो हमारे नींव को, भारतीय गणतंत्र की एक मूल नींव को पर आघात करते हैं। भारतीय गणतंत्र को गर्व है अपने आर्म्ड फोर्सेस पे, और हम ये भी जानते हैं कि ऐसे कई देश हैं पड़ोस में और दूर दराज जो इसी आर्मी पे हमारे विषय में बहुत ईर्ष्या करते हैं। जहाँ हम गर्व करते हैं वो ईर्ष्या करते हैं। ऐसा न होना चाहिए कि जो लोग कितने ही साफ दिल से इस प्रकार के स्पेकुलेशन में पड़े, जो तथ्यों पर जिसका कोई आधार न हो, वो हमारे पूरे देश, नेशनल फैब्रिक को एक ऐसा आघात पहुंचाए जो बदला न जा सके। आपका ये प्रश्न कि मूवमेंट था, मूवमेंट होना किसी रूप से ये परिमाणित नहीं करता कि इस कारण से मूवमेंट था, इस निष्कर्ष से मूवमेंट था, इस उद्देश्य से मूवमेंट था। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें राजनीति खेलना या हल्केपन से अपने उत्तरदायित्व को अदा करना अत्यंत निंदनीय और दुखद होगा। I have said what I have to say. I have said. Does the Congress party see a deeper design in the publishing of such stories? Do you think it could be a national or international game to destabilize your government? I will not say more than what I have said. Your question has been heard loud and clear by everyone. Everyone can draw their own conclusions, but I have said what I wanted to say. एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों पे वही कहा है, बात नहीं कहा है और सरकारी एक्सप्लेनेशन को स्वीकारा भी है, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट है एमओडी और इंडियन आर्मी के बीच में। देखिए, इसके बारे में आप क्या? देखिए, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक रूप से व्यक्त कर रहा हूँ मत। हमें इससे कोई संबंध नहीं है कि किसने और ने क्या कहा है। ये हमारा मत है, बड़ा स्पष्ट है। अगर और लोग इससे सहमत हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रीय हित में है कि इन मामलों में असहमति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ ऐसे वक्तव्य सुबह आए थे उस पार्टी से भी जिसका जिक्र आपने किया, जो ये नहीं कह रहे थे जो आप कह रहे हैं। उसके बाद आधिकारिक मैं समझ गया, मैंने इसलिए मैंने कहा ना आपको, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा। तो इसलिए किसी के इस्तीफे की बात करना, इसमें राजनीति खेलना, इसमें हल्कापन लाना न किसी को शोभा देता है, न उसमें विश्वास करते हैं। और अगर एक रूटीन आम चीज़ जिस पे आप अपना एक कंक्लूजन दिखाते हैं वो सत्य नहीं है, तो इसमें मैं समझता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट का सवाल कहाँ से उठता है। ये एक रूटीन मामला है जो होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है, जो अंतिम परिणाम निकाला जा रहा है, जब वो उसका कोई संबंध ही नहीं है इससे, तो ट्रस्ट डेफिसिट का सवाल कहाँ से उठता है। अभिषेक जी, there have been allegations in recent months that the UPA government has mishandled the delicate military-civilian relationship and even damaged it. Those are general points. I am not getting into the larger issues. I am giving you a reaction to a very specific situation, and I am restricting myself to that. I am saying nothing. You know my stand on all the other issues, on those other issues, the larger issues. एक मिनट यहाँ कोई पूछ रहा था अभी, आप पूछ रहे थे? नहीं, आप एक मिनट, नहीं आप पूछ रहे थे। हाँ, No. I think it will be highly regrettable if either me or you start talking of names, start talking of motives, start talking of supposed objects. Absolutely, I do not want to get into it at all. I have said what I wanted to say, and I am not going to add or subtract at all. मैंने बोल दिया, अब और कुछ मैंने जो बोला था बोल दिया, उस बात को नहीं बोल दिया मैंने, इनके प्रश्न में बोल दिया बस। हाँ, एक मिनट। राजस्थान के 3 दर्जन विधायक मुख्यमंत्री के
नहीं, एक मिनट इसके पहले क्या है? Is it a libelous report? Sorry? Is it a libelous report? No. You see, for national interest issues, for issues of foundations of our democracy, we are not getting into legal doctrines like libel or slander or defamation. It is something on which it is very clear that national interest is what has to prevail, and we are putting it on that very clear plank. There is no question of getting into a lesser threshold which you are suggesting. This is a much higher threshold of national interest. No fact, not a single fact justifies such speculation, such conclusion. जी राजस्थान के 3 दर्जन विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कार्य प्रक्रिया ऐसी है जिसके चलते उन्हें काम करने में दिक्कतें होती है। देखिए, आप दो चीज़ों में भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय बहुत विशाल पार्टी है जिसमें हर स्तर पर अपने सुझाव लेकर, सुधार के सुझाव लेकर, सकारात्मक सुझाव लेकर किसी स्तर पे कोई व्यक्ति जो बोनाफिडे कर रहा है उसके सुझाव सुने जाते हैं, वो प्रस्ताव रख सकते हैं, वो अपना मत रख सकते हैं। ये एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसके ऊपर हमें गर्व है, और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप और हम हमेशा सहमत हों। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं प्रश्न, वो एक दूसरी चीज़ है। इस प्रश्न का उद्देश्य ये नहीं, इस सुधार या इस सुझाव का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को डिस्टेबलाइज़ किया जाए या किसी को हटाया जाए। ये एक प्रक्रिया आमतौर पे पार्टी के अलग अलग स्तर पे चलती है। जिसको जो प्रस्ताव देना होता है, मत देना हो तो मत रख देता है। ये बहुत देरी से पूछ रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी को लेकर आपकी सरकार में विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले सुब्रमण्यम जायसवाल ने विरोध किया था, पीएल पुनिया ने आलोचना की है वित्त मंत्री की, क्या कोई कार्रवाई होगी या? देखिए, ये बजट का प्रस्ताव है। बजट अभी तक अंतिम रूप से पारित नहीं हुआ है। इस वक्त एक ही मुद्दा नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें स्वाभाविक है और हर साल होता है, असंतोष है, असंतोष हो सकता है। उन सबको औपचारिक रूप से, मैं दोहरा रहा हूँ, औपचारिक रूप से देखा जा रहा है। अभियान हुए हैं, संदेश गए हैं, रिप्रेजेंटेशन गए। अभी हाल ही में, कल ही की बात है, उसको सबको देखा जाएगा और इसमें जो अंतिम एक जो नेशनल रूप पे निर्णय हो सकता है उसको लिया जाएगा। इस वक्त इस पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। या आपका दूसरा क्वेश्चन हो, पूछिए। हाँ, you can rest assured that the Congress has and knows how to deal with all different segments of those who come with either proposals or suggestions or even a dissenting note. Please be rest assured that we will take action wherever necessary. Certainly in some states there have been other reasons why some decisions have been delayed, and you will see in the near future, wherever necessary, everything will be satisfactorily sorted out. आंसर कर दिया, आई हैव आंसर्ड इट। हिंदी में किया मैंने, सुना नहीं आपने, स्पेसिफिकली डेफिसिट नाम लेके किया है। हाँ, Supreme Court has pulled up Vilasrao Deshmukh for giving 20 acres of land to Subhash Ghai. Yes, they have said that he cannot treat anyone as blue-eyed boy. There is no question of commenting on a court judgment. There was earlier a High Court judgment which completely quashed it, went against him completely. If we didn't give a comment then, we don't have to give a comment now. It will abide by the Supreme Court order. It is he who has exercised the right of appeal. Mr. Ghai has exercised the right of appeal separately. This will be sorted out by the Supreme Court. The party has nothing to comment on. Whatever is the judgment ultimately will be implemented in letter and spirit. So let us wait for a final order. BJP wants Vilasrao's. The BJP has demanded how can you give away a national resource like land
The last word, the last judicial word, let us wait for that. At the moment, it's we might call it a work in progress as far as the hearing is concerned. I don't think it's right to jump to conclusions now. It's at the apex court and I don't see any reason to react before there's a last word. Okay. जो कंपनी थी NHAI पर NHAI की रिपोर्ट आई थी जिसमें घूसखोरी के आरोप लगे थे, सबस्टैंडर्ड ब्लॉक हुआ है। PCL जिसने वो हाईवे बनाया था, एक्सप्रेस बनाया था, वो कांग्रेस के MP KS राव। ये रिपोर्ट आई है, निश्चित रूप से MP हो न हो, कांग्रेस के हो, किसी और पार्टी की हो, जो भी रिपोर्ट में तथ्य है सही है, उसको देखा जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी तो रिपोर्ट आई है, वो मानी नहीं गई है, उसके ऊपर और टिप्पणियां होंगी और अंतिम जो निर्णय होगा वो होगा। ये तो एक कमर्शियल डिसीजन है, उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक के विषय में है और जो भी उस पर होगा वो एक्शन लिया जाएगा। NHAI खुद एक्शन लेगी अगर है तथ्य तो। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि उनके खिलाफ जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो कांग्रेस द्वारा कराए जा रहे हैं। अब देखिए, ये पुरानी कहानी हो गई, इसमें कोई नई नवीनतम बात तो आपने कही नहीं है, ये कई महीनों से चल रही है कहानी। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई पुलिस एजेंसी, चाहे CBI हो या नॉन CBI हो, वो अपना काम करे और सब लोग सिर्फ कांग्रेस की तरफ अगर आंख उठाएं या संकेत करें तो उसका कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम विचलित नहीं होते, क्योंकि कोर्ट कचहरी देखती है तथ्य क्या है, आधार क्या है, रिपोर्ट क्या है, चार्जेस क्या हैं, चार्जशीट क्या है, तो बड़ी पुरानी बात हो गई। ओके। सवाल शायद आपको अच्छा लगे। 6 साल की बच्ची ने दादी जी को राष्ट्रपति लाल का घोषित किया गया, इसकी जानकारी मांगी है RTI की। क्या लगता है RTI से जागरूकता बढ़ी? देखिए, RTI एक क्रांति है। आप जो कह रहे हैं सिर्फ वो सही नहीं है, वो उससे ज़्यादा कहीं और ज़्यादा अतिशयोक्ति के साथ सही है। ये क्रांति है, जागरूकता एक छोटा शब्द है, हक बड़ा है, एक हक का एहसास बड़ा है और हर प्रकार से, और मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत का सदुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लोग अपने हक को समझ रहे हैं और मैं इस प्रश्न या गांधी जी के विषय में नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ये माननीय रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, इसके लिए शायद RTI की आवश्यकता भी नहीं हो, क्योंकि ये किताबों में भी लिखा है और उसका वर्ष भी लिखा है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RTI के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। I don't even know what, you may be right, you may be wrong, I have no idea who the person is, what the context, I can't reply. If you can give me the details, I'll check up, I have no idea. I would not know. She meets party leaders, party workers, party office bearers at all times. You can check up at her office. If they disclose the appointment schedule, you will come to know. No. Meeting Congress leaders and office bearers is not equal to a crisis, except in your dictionary. Okay, thank you.